پاکستان ہوں۔ کھیتوں کھلیانوں مرغزاروں سنگلاخ چٹانوں دریاؤں اور سبززاروں کا وطن، ملاحوں سیاحوں کسانوں جوانوں اور پہلوانوں کا دیس، مزدوروں مصوروں ادیبوں فنکاروں اور شاعروں کے خوابوں کی تعبیر۔ میں وہ خطہ زمین ہوں جس پر قدیم ترین انسان کی ولادت گاہ کے نشانات ظاہر ہوئے۔ صدیوں سے مال مویشی چرانے والے خانہ بدوش ملکوں پھر کر بالآخر میری ہی چراگاہوں میں آ کر رکے اور مجھ ہی کو مستقل سکونت کے لیے اختیار کیا۔ ان کے پے ہم گردش کرنے والے وجود کو میں نے ہی سکون عطا کیا۔ یہ میرا دل میرا شہر لاہور ہے، تاتا کی نگری، باغوں بہاروں کا شہر۔ میرے سارے شہر میرے وجود کا حصہ ہیں، مگر لاہور کو وہی حیثیت حاصل ہے جو جسم میں دل کو یا دل میں روح کو ہوتی ہے۔ لاہور کے شب و روز اپنے دامن میں ان گنت کہانیاں اور فسانے سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس شہر نے انسانوں کی تقدیریں بنتی بگڑتی دیکھی ہیں، فسانوں کو حقیقت اور حقیقت کو فسانہ بنتے دیکھا ہے۔ اس کی مٹی سے ایسے فرزند پیدا ہوئے جنہوں نے میرا نام بلند کیا اور دنیا میں لاسانی ہو گئے۔ آپ 5 فروری 1635 کو اندرون دہلی گیٹ سنہری مسجد کے قریب واقع محلہ کوٹھی دارا میں شہنشاہ شاہجہاں کے سپہ سالار جلال الدین کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ برصغیر پاک و ہند میں فن پہلوانی کے بانی ہیں۔ آپ نے 361 داؤ ایجاد کر کے فن پہلوانی کا نصاب مرتب کیا۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے آپ کو قطب پہلوانی کا خطاب عطا کیا۔ پہلوانی 2 افراد میں مقابلہ کرنے کا نام ہے۔ پہلوانی کے کئی انداز ہیں، ایرانی انداز ہی کو قدیم مانا گیا ہے۔ ہماری دیسی کشتی کا انداز بھی ایرانی ہے، یہاں تک کہ خطابات بھی ایرانی ہی اختیار کیے گئے ہیں۔ رستم ایرانی النسل پہلوان تھا اور مرتبے میں عظیم ترین۔ بر صغیر میں سب سے طاقتور پہلوان کو رستم ہی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے رستم ہند، رستم پاکستان، رستم زمان کے خطابات وضع کیے گئے۔ یہ کشتی اکھاڑے میں لڑی جاتی ہے۔ اکھاڑے کی لمبائی چوڑائی کے متعلق کوئی خاص قانون نہیں، بلکہ جتنی بھی جگہ محلے کے کسی کونے میں ملے وہیں اکھاڑا بنا لیا جاتا ہے۔ بیٹھکیں لگانا، ڈنڈ پیلنا، دوڑ لگانا، ایک پہلوان کو کاندھوں پر بٹھا کر دوڑنا، ایک سے زیادہ پہلوانوں کو اٹھا کر کسرت کرنا، اکھاڑا گوڑنا فن پہلوانی کی ورزشیں کہلاتی ہیں۔ روزانہ 16 گھنٹوں پر مشتمل انتھک محنت اور مشق و مہارت کے حصول میں لوہے کے چنے چبانے کے بعد کوئی پہلوان وجود میں آتا ہے۔
میرے والے کی مٹی کی عظمت کی بڑی قدر کرتے تھے. جس جھاڑو کے ساتھ وہ مٹی اکٹھی کرتے تھے اس جھاڑو کو بڑا سنبھال کے رکھتے تھے اور دوسری جگہ اس جھاڑو کو استعمال نہیں کرتے تھے. کھاڑے کی مٹی غلط لوگوں کو جو پرہیزگار نہیں ہے، نیک نہیں ہے، اپنے میں داخل نہیں ہونے دیتی. یہ مٹی انہیں ہی نصیب ہوتی ہے جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں. کھاڑے پہلوانوں کے فن کو سنوارنے اور نکھارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. استاد نور الدین نے اپنے 200 شاگردوں کو 3 دفعوں یا گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا تاکہ آپس میں صحت مند مقابلوں کے نتیجے میں فن پہلوانی ترقی کرتا رہے. یہ تینیں نورے والی دف، کالو والی دف اور کوٹ والی دف کے نام سے مشہور تھی. پہلوانی کی تاریخ کے اہم ستون لون والا، نانی والا، سلطانی والا، بالی والا، بکھی والا اور علیہ پہلوان کے خاندان ہیں. سلطانی والا خاندان کا جد امجد عمر بخش پہلوان راجہ رنجیت سنگھ کا درباری پہلوان تھا. رنجیت سنگھ کے گورنر ہری سنگھ اپل نے اس خاندان کو گجرانوالہ میں آباد کیا، جہاں عمر بخش پہلوان نے خیالی دروازے میں ایک عظیم الشان اکھاڑے کی بنیاد رکھی. اٹھارہ سو 40 میں عمر بخش پہلوان کے گھر سلطان پیدا ہوا، جس کے نام پر سلطانی والا خاندان وجود میں آیا. سلطان پہلوان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اس فن کو رحیم بخش پہلوان جیسا شہزور بیٹا عطا کیا. بالی والا خاندان کا شمار بھی فن پہلوانی کے معماروں میں ہوتا ہے. یہ خاندان نامور پہلوان بابا بالی کے نام پر مشہور ہے. بالی پہلوان کے 2 بیٹوں ملا پہلوان اور گامو پہلوان میں صرف گامو بالی والا ہی کو عزت اور شہرت نصیب ہوئی. گامو بالی والا کا بیٹا فیروز گونگا اس کی شہرت کا سبب بنا، جسے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا پسندیدہ پہلوان ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. شاہ نواز نانی والا پہلوان کے خاندان کا مورث اعلیٰ کرم خان تھا، جو قندھار سے آ کر ملتان آباد ہوا. کرم خان کے بیٹے کریم خان نے ملتان میں اکھاڑا قائم کر کے اس فن کو فروغ دیا. نقل مکانی کے دوران کرم خان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو کریم خان کی کفالت اس کی نانی کو کرنا پڑی. اسی نسبت سے کریم خان نانی والا مشہور ہو گیا. شاہ نواز نانی والا اسی خاندان کا روشن ستارہ تھا. 12 سال تک مسلسل رستم ہندرے اور نواب بہاولپور کے بہت چہیتے پہلوان تھے. نواب صاحب نے انہیں کشتی گرانے کے انعام میں ایک سونے کا جو ہے 1.25 کلو کا کنٹھا بھی دیا تھا. اس کے علاوہ زمینیں وغیرہ بھی الاٹ کی تھیں. مختلف بڑے بڑے پہلوانوں سے کشتیاں لڑی ہیں، مثلا غلام پہلوان سے، فکر سنگھ پہلوان سے، کلو پہلوان کے ساتھ کشتیاں ان کی ہوئی ہیں بڑی یادگار. بجے والا خاندان کے جد امجد ملک قادر بخش پہلوان، ملک اللہ دتا پہلوان ملتان کے علاقہ کوٹلا تولے خان میں آ کر آباد ہوئے. ہمیں بجے والا اس لیے کہتے ہیں کہ میرے پردادا ملک اللہ دتا پہلوان اور
اپنا کلو پہلوان کی کشتی ہو رہی تھی. کلو پہلوان نے میرے پردادا ملک اللہ کو گھسان مارا ہے. تو منصف کو کہا بھائی دیکھیے یہ گھسان مار رہا ہے. وہ ہنس پڑے منصف. تو میرے پردادا ملک اللہ نے اس کو ایک گھسان مارا, اس کی آنکھ ختم ہو گئی اور ایک ہی گھسان سے وہ گر پڑا. لوگوں نے یہ کہہ دیا اور اسے بج لا دیتی. بیسکلی ساری ذات جڑی ہے نا راجپوت ہے, اتوں بجے والا کہہ لیا. اس خاندان میں فن پہلوانی آج بھی زندہ ہے. اس خاندان نے جنوبی پنجاب کو حسن بخش پہلوان, احمد بخش پہلوان, زوار حسین پہلوان اور مرید حسین پہلوان جیسے شہزور عطا کیے. شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ہندوستانی ریاستوں نے فن پہلوانی کے فروغ میں قابل ذکر کردار ادا کیا. ان ریاستوں کے راجے مہاراجوں کی فن پہلوانی کے فروغ کے لیے کی جانے والی کوششیں ہماری تاریخ کا شاندار باب ہے. یہ راجے مہاراجے اور نواب جہاں بھی کسی جوہر قابل کو دیکھتے فوراً اس کی سرپرستی کے لیے پہنچ جاتے. خود پہلوان بھی ہندوستان کے کونے کونے سے نکل کر ان ریاستوں کا رخ کرتے جہاں ایک خوشحال اور آسودہ زندگی ان کے انتظار میں ہوئی. پہلوان جب زرق برق لباس, سروں پر رنگ برنگی پگڑیاں اور موتیوں کے ہار پہن کر گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلتے تو وہ بھی بالکل راجے مہاراجے ہی لگتے, اور ایسا ہی رنگ ان کی شادی بیاہ کی تقریبات سے بھی جھلکتا تھا. لاہور اپنی ثقافتی شناخت کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے. کہتے ہیں کہ جس فنکار کے فن پر اہل لاہور نے مہر تصدیق نہیں لگائی اس کا چراغ ہمیشہ گمنامی کی ہواؤں کی زد پر رہا. یہی وجہ تھی کہ مشرقی پنجاب کے شہر امرتسر میں 1825 میں جنم لینے والا پہلوان صدیقہ گلگو, جسے رستم جنات بھی کہتے ہیں, اپنے آپ کو استاد نور الدین کا شاگرد کہلواتا تھا اور لاہور سے والہانہ پیار کرتا تھا. وہ رنجیت سنگھ کے بیٹے شیر دل کے درباری پہلوان بھونچال سے مقابلہ کرنے لاہور گھوڑے شاہ کی بارادری آیا اور فاتح بن کر واپس لوٹا تو اندور کے راجہ شیاجی اول نے اسے رستم ہند کا خط دیا.
फने पहलवानी पूरी तवज्जो, रूह का मीरा और दिल की रग़बत मांगता है। दिल्ली गेट को यह शर्फ हासिल है कि यहां लाहौर के नामवर पहलवानों ने जन्म लिया। करीम बख्श पेलड़े वाला सुनहरी मस्जिद के मोहल्ले का केजैया में पैदा हुए। उनकी जाए पैदाइश आज भी इन्हीं के नाम से मशहूर है। करीम बख्श का उस्ताद अमीर बख्श टंगेल भी इसी मोहल्ले में रहता था। ये वो घर है जहाँ करीम भाई पहलवान पेलड़े वाला रुस्तम जमा के उस्ताद करीम अमीर भाई टंगेल और वजीर भाई टंगेल दोनों भाई जो सोए हुए भी दाम मारते थे, गिरना नहीं हमारी किताब में है। पहलवान से तय हुई तो अमीर बख्श ने अपने शागिर्द की तैयारी करवाई। नूरे वाली दफ का एक और अजीम पहलवान गुलाम महीउद्दीन बाजार कूचाए चाबुक सवारा में पैदा हुए। ये खलीफा गुलाम महीउद्दीन रुस्तम जहां उस्ताद नूरा वगैरह सब रहते थे, नीचे वाला जो हिस्सा था वहां खाना था खलीफा गुलाम महीउद्दीन रुस्तम साहब का। आपका ताल्लुक उस्ताद ज़मान नूरुद्दीन की नस्ल से है। नूरे वाली दफ के बस्सा पहलवान सितारा हिंद बैरून अकबरी दरवाजे के मकीन थे और लाला राज परी पैकर भी इसी दरवाजे के रहने वाले थे। लाला राज बस्सा पहलवान के शागिर्द खास थे और मुल्तानी दाव के चैंपियन। नाल भी जैसे सियाकोट खुशी हुई सी, उन्होंने बड़ा प्यार किया सी, फिर इन्होंने कुश्ती को जी फिर कामयाब फिर उधर क्यों नहीं गया तो लाले की कुछ एक दाव और मार मुतारी थी पहुंच जाएगी। Whatever your next destination, reach for the sky at flightcatchers.com. Find a quoting set. चौक डब्बी बाजार के करीब हवेली काबली मल गली कंदी गरा के एक गरीब घराने में पैदा हुए। खुराक और पहलवानी का चोली दामन का साथ है, मगर बूटा लाहौरी खुराक की कमी का शिकार था। पहलवान ने अपने शौक की तकमील के लिए बड़ा अनोखा तरीका ईजाद किया। वो सुबह सवेरे उठकर किसी गली के कोने या बाजार में घात लगाकर बैठ जाता। जैसे ही लाहौर ये नाश्ता लेकर गुजरते, बूटा दरमियान ही से उचक लेता और थड़े पर बैठकर खाता। जिस्म को तवानाई फराहम करने के लिए बूटा मज़ारों से सरसों का तेल हड़प कर जाता। अमृतसर में बूटा पहलवान का पहला मुकाबला अलिया पहलवान की पूरे हिंदुस्तान में धाक बैठ गई। खांडे राव के दरबारी पहलवान रमजी को शिकस्त देने के बाद आपको राजा ने इनाम व इकराम के साथ बेवदिल का खिताब भी दिया। बूटा लाहौरी ने अमलन साबित कर दिया कि दाव पर आया पहाड़ भी राई होता है। ताकत को हासिल करना इतना दुश्वार नहीं जितना उसे संभाल कर रखना होता है। मेरे बाप ने कोई दोस्त नहीं बना देता, मैं कोई किसी को बहन नहीं देता और 25 साल की उम्र के नासू आया। सुबह उठी रहा सी, नमाज पढ़ी थी सी, कुरान भी पढ़िया सी, फिर हमारी बन गई सी। पहलवान बेपनाह ताकत और खूबसूरत जिसामत के बावजूद कभी गुरूर नहीं करते थे। लोग पहलवानों को इज्जत की निगाह से देखते थे और उनकी पाकीज़गी की कस्में खाया करते थे। दुनिया से मत्था लगाने वाले आराम से नहीं सोते। ये अल्फाज गुलाम पहलवान ने रहीम सुल्तानी वाला पहलवान से कहे। गुलाम की शागिर्दी के बाद रहीम बख्श सुल्तानी वाला पहलवान तूफान बनकर उठा।
काला परताबा को पब्बी से जेर किया। चन्नम कसाई उसकी पुट्ठी की जद में आया। मन्नी रैनी वाला अपनी तमाम तर कारीगरी समेत जमीन चाटने पर मजबूर हुआ। बुद्धू ब्राह्मण जैसे शहजोर के लिए शिकस्त से बचना मुमकिन न रहा। रहीम बख्श सुल्तानी वाला के सामने अगर कोई पहलवान ठहर सका तो वो सिर्फ अली साईं था। रहीम बख्श सुल्तानी वाला अपने दौर का वाहिद 3 पुश्तों तक पहलवानी करता रहा। मेरा दादा रहीम पहलवान सुल्तानी वाला जड़ा है उन्हें गूंगे भगवान दे प्यो नूं भी जटाया ते मराज भगवान नालों जोरावर सी ते इस करके रहीम पहलवान ने ते फैसला किया कि ये प्यो नाल भी मैं घुलिया ये भी मैं ही घुलना। रहीम सुल्तानी वाला जिस्म पर संदूक मलकर जब मैदान में रक्स करता हुआ आता तो लोगों का ठाठे मारता हुआ समंदर फलक शगाफ नारों से उसका इस्तकबाल करता। आमा वाली सरकार के मुरीद थे और बाकायदगी से अपने मुर्शद की खिदमत में हाजिरी दिया करते थे। कालिया जलालपुरी से आपके 2 मुकाबले हुए। वजीराबाद के एक मुकाबले में रहीम सुल्तानी वाला कालिया जलालपुरी से चित हो गया। इस मुकाबले की तैयारी के वक्त कालिया के मुर्शद सुलमीर सद 1878 में हिंदुस्तान में अब एक ऐसा सूरज तलू हो चुका था जिसके सामने सारे सितारों की रोशनी को मान पड़ जाना था। यह था रियासत दतिया के दरबारी पहलवान अजीज बख्श का बेटा, लूण पहलवान का नवासा गुलाम मोहम्मद उर्फ गामा। अजीज बख्श आकर दतिया में सेटल हुए। ये कश्मीर से इनका ताल्लुक था। कश्मीर का ये वो दौर था, उससे पहले का कि जब राजा गुलाब सिंह वहां पर हुक्मरान था, उसके जुल्म सितम और उसे तंग आकर कुछ मुसलमान और शुरफा खानदान जो थे वो अमृतसर में आके आबाद हुए। वहां से फिर वो मुख्तलिफ हिंदुस्तान की बेशतर रियासतों में आके फैल गए। वो पहलवान और आम लोग भी। तो उसमें गामा के वालिद भी थे जो दतिया आकर सेटल हुए। तो उन्हें बड़ा शौक हुआ उससे कि वो खुद बजाय खुद उनके फादर जो थे वो खुद अच्छे पहलवानों में शुमार होते थे, अजीज बख्श अपने दौर में। इस तरह से गामा में जो शौक और जज्बा जो पैदा हुआ वो अखाड़े के उस माहौल से हुआ जिसमें कि इनके वालिद इनको हर रोज ले जाए। जिसने सपाटों के एक मुकाबले में 400 पहलवानों को 9 बरस की उम्र में शिकस्त देकर अपनी फतूहात का आगाज किया। गामा पहलवान की पहली बाकायदा कुश्ती रहीम सुल्तानी वाला से हुई। यह कुश्ती बराबर रही। इसके बाद गामा की शोहरत पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। 20 बरस की उम्र में गामा पहलवान ने बरसगीर के तमाम पहलवानों को चैलेंज कर दिया। पहला मुकाबला दतिया के महिउद्दीन पहलवान से हुआ। गामा ने बिजली की तरह पट खींचकर उसे जमीन बोस कर दिया। रियासत के राजा ने 30,000 रुपए और 23 सेर वजनी सोने और चांदी का गुर्ज इनाम में दिया। छब्बीस साल की उम्र में गामा का मुकाबला अली साईं से हुआ। बड़े बड़े पहलवानों के दांत खट्टे करने वाला यह पहलवान 1 मिनट भी आपके सामने खड़ा न रह सका। रहीम सुल्तानी वाला एक बार फिर आपके मुकाबले आ गया। गामा ने इस दफा 14 दाव इस्तेमाल किए मगर कुश्ती बराबर रही। गामा ने जितनी कुश्तियां अपनी लाइफ में लड़ी हैं 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 2.5 मिनट। अब सिर्फ एक ही पहलवान रह गया था जो बार बार पूरे हिंदुस्तान को ललकार रहा था। वो था गामा पहलवान। उसने ललकारा कि जो मुझे हराएगा 7,000 रुपए इनाम पाएगा। चुनाचे हसन बख्श मुल्तानी ने यह चैलेंज कबूल किया। 3 मुख्तलिफ शहरों में मुकाबलों के बावजूद न जीत सका तो हमेशा के लिए गामा के रास्ते से हट गया। 1909 में रहीम सुल्तानी वाला ने एक दफा फिर लाहौर में मुसलसल 3 घंटे मुकाबला किया मगर बराबर रहा। अब गामा की नजर आलमी मंजरनामे पर थी। 1910 में गामा ने लंदन में आला नुमाइश के मौके पर एक ऐलान बरतानिया के अखबारात में शाया करवा दिया कि जो पहलवान 5 मिनट में मुझे हराएगा मैं उसे 5 पाउंड का इनाम दूंगा। इस ऐलान ने हर तरफ तहलका मचा दिया। 10 सितंबर 1910 को
पोलैंड के नामवर पहलवान स्टैनले ज़बिस्को ने यह चैलेंज कबूल किया। इस कुश्ती के कवायद क्या थे, जवाबित क्या थे, इसके रूल्स क्या थे? ये थे कि दो पहलवानों को अखाड़े में छोड़ दिया, उसमें ना वक्फा है कुश्ती के दौरान, ना उसमें कोई पॉइंट है, ना कहीं ब्रेक है। उस जमाने में बरतानिया में इसी तरह की कुश्ती थी जिसका नाम था कैच एज कैच कैन। ज़बिस्को भी तो गाने भलवान की कुश्ती हुई, इन सारे जिसे ढालता था ज़बिस्को की तीनों की कुश्ती हुई। वो कहते जी कोई 3 घंटे हुई, 3 घंटे की कुश्ती जारी रही जी जी। और बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं हूँ 18 के बाद लड़ांगा, मैं हूँ नहीं लड़ सकता, मैं थक गया हूँ, 8 दिनों के बाद मैं फिर मुकाबला करूंगा। अगर मैं ना लड़ूंगा तो ये जीत गया। वो मुड़ के नस गया जी, वो फिर उन्होंने फिर नहीं आया, मैदान में नहीं निकला। तो गामा पहलवान रुस्तम जमान के टाइटल के हकदार हुए। एक तवील मुकाबले के बाद गामा को फातिह करार दे दिया गया और आक्रो कमेटी ने बेल्ट देकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। गामा की इस फतह पर पूरे बर्रे सगीर में कामयाबी का जश्न मनाया गया। गामा ने रुस्तम जमा का ताज सर पर सजाने के बाद एक बार फिर हिंदुस्तानी पहलवानों के सामने अपने चैलेंज को दोहराया तो उनका पुराना हरीफ रहीम सुल्तानी वाला चौथी बार खम ठोंक कर मैदान में उतरा। 45 मिनट तक पहलवान दाव पेच का तबादला करते रहे। अचानक न जाने क्या हुआ कि रहीम सुल्तानी वाला एक धमाके से अखाड़े में गिरा और 12 साल पुराने मार्के का फैसला। अब गामा पूरी दुनिया में नाकाबिले शिकस्त हो चुका था। गामा कहते थे, अगर कोई पहलवान मेरा मुकाबला कर सका तो वो रहीम बख्श सुल्तानी वाला था और वही मेरी शोहरत का बायस बना। 1911 को कोल्हापुर में गामा के छोटे भाई इमाम बख्श ने रहीम पहलवान से मुकाबला कुश्ती जीतकर रुस्तम हिंद का टाइटल भी जीत लिया। आपके वालिद साहब का भी 1911 में एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ था। वो रुस्तम का मुकाबला थी जी कोल्हापुर के विच जी। कोल्हापुर महाराज ने कराया सी रहीम पहलवान सुल्तानी वाले जिते साले वाले। यूं दोनों भाई, एक रुस्तम जमा और दूसरा रुस्तम हिंद हो गया। सियालकोट शहर के मोहल्ले सालू गुजर मंदिर लक्ष्मण दास में वाक़या अखाड़े में जोर करने वाला फिरोज गूंगा, जिसे चूनी लाल पहलवान ने फने पहलवानी के गुर सिखाकर एक काबिल फख्र पहलवान बना दिया था। अक्टूबर 1922 को गूंगा पहलवान ने फने पहलवानी के बहुत बड़े सतून यक्का पहलवान को गिराकर अपनी फतूहात का आगाज किया। गुत्ता सिंह, बस्सा पहलवान, हाथू मुल्तानी, गुलाम कादिर कालिया, गुलाम महिउद्दीन और रहीम सुल्तानी वाला के साथ होने वाले मार्कों ने उसे शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। अब गामू बालीवाला और गूंगा पहलवान लाहौर में बूटा लाहौरी से मुकाबला करने की गरज से जब अखाड़ा खाई वाला में आए तो बूटा लाहौरी के समझाने के बाद दोनों बाप बेटा आपके शागिर्द हो गए। कालू वाली ये वो दफ है जहां ट्रेनिंग करके उस्ताद बूटा पहलवान रुस्तम जमा हुए। गामू पहलवान और गूंगा पहलवान इसी खाड़े में उस्ताद बूटा पहलवान के शागिर्द हुए। खलीफा बूटा ने फिरोज गूंगा को अपनी शागिर्दी में लेकर उसको ऐसी तरबियत दी कि उसे नाकाबिले शिकस्त बना दिया। 1924 मंटो पार्क लाहौर में इमाम बख्श और गूंगा पहलवान के माबैन होने वाले इस मार्के को शायकीन कुश्ती 20वीं सदी का सबसे बड़ा मार्का करार देते हैं। इमाम बख्श ने पूरी हिम्मत के साथ गूंगे का मुकाबला किया मगर हार गया। गूंगा का अगला निशाना रुस्तम जमा गामा पहलवान था।
मगर इमाम बख्श ने चंद महीनों की तैयारी के बाद 10 मई 1925 को अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर लिया। पूरा लाहौर खुशी से झूम उठा और जुलूस निकाला। मिस्ल मशहूर है कि बड़े और घने दरख्त के नीचे दूसरा दरख्त नहीं उगता, मगर इमाम बख्श ने इस कहावत को गलत साबित कर दिखाया। गामा पहलवान अगर आफताब पहलवानी था तो इमाम बख्श चौधरी का चांद साबित हुआ। अब गामा और इमाम बख्श के जिस्मों पर बुढ़ापा दस्तक देने लगा था। इमाम बख्श के 6 बहादुर बेटे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आन खड़े हुए। इमाम बख्श के बेटों में सबसे कदावर शहजोर मंजूर हुसैन अल-मारूफ भोलू पहलवान था। 1939 को भोलू पहलवान अब 17 बरस का हो चुका था। उसकी पहली कुश्ती मंटो पार्क में हसन बख्श मुल्तानी के बेटे अहमद बख्श से हुई, जो बराबर रही। उसके बाद अलीम पहलवान आफताब हिंद, बुल्लर पहलवान, चिराग नाई गुजरावालिया, गौसा पहलवान, हुसैना दफ्तरी, पूरन सिंह और बहुत से दूसरे नामवर शहजोरों को अखाड़े की खाक चाटने पर मजबूर कर दिया। ये चूहा पहलवान कौन था? वो हलीम का बाप था, बूढ़े पहलवान का भाई था। बड़े बड़े पहलवान। मगर अब भी एक पहलवान ऐसा था जो भोलू को खातिर में लाने को तैयार न था, और वो था रुस्तम हिंद गूंगा पहलवान। लिहाजा इन दो अजीम पहलवानों का टकराव एक लाजमी अम्र था। इस टकराव के लिए दोनों तरफ गैर एलानिया तैयारियां जोरों पर थीं। 1944 में गूंगा पहलवान मेरा चिरागा में शिरकत के लिए आते हुए रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उसकी अचानक मौत पर भोलू पहलवान के चाहने वालों का कहना था, चूंकि खुदा को भोलू पहलवान का दागदार होना पसंद न था, इसलिए गूंगा पहलवान को अपने पास बुला लिया। बाबा जी आए इंडिया तो उत्थे कुश्ती बिल्कुल है, तो बाबा मथुरा ने उत्थे ही उन्होंने देखा तो आशिक हो गया। बाबा मथुरा जब उत्थे भलवान बाबे ने कहा मैं नाल लै चल। हाँ जी। उन्हें कहा मैं नहीं तेन खड़ना, तू अपनी मां लिया या प्यो लिया तो फिर मैं तेन चलांगा। समझ आई गया? वो जिले बैठे तो बाबा मथुरा दूसरे डब्बे च बह गया, लाहौर आके फड़े गए ने। फिर उन्हें दसिया कि मैं गूंगे भगवान के नाल आया हुआ। हाँ देखी चले हाथों खां को पहलवान ठहरे इतिहास जरूर छपे ने, लेकिन दंगल नहीं सी होया। गूंगे भगवान ने इमाम बख्श नूं ढाया है जी, तो फिर वो दफ जी इन्होंने मुखालिफ हो गई। फिर उन्होंने मीदे भगवान नूं तैयार किया। फिर बहौलपुर जी कुश्ती हुई है नवाब साहब दे, वो किस तरह हुई है? पहले दिन तो इन्हें ढा लिया सी। अच्छा। दूसरे दिन राजे ने कहा कि लोगों ने ते राजिया ने या पहलवानों ने जो कुश्ती देखी है, रानियां जड़ियां सन जड़ियां महल उन्होंने भी देखी। वो महल वाली रानियां दूसरे दिन फिर आनियां, फिर कुश्ती होगी। उन्होंने मर्जी सी कि किसी तरीके ना भी गूंगा भगवान मीदे भगवान को डिग जाए तो रुस्तम हिंद दा खिताब मीदे भगवान मिल जाए। लेकिन वो दूसरे दिन भी गूंगा भगवान ही चंगा पिया, इन्हें ही उन्होंने चंगी कुश्ती करी, लेकिन वो कुश्ती बराबर हो गई। दूसरा नजर ही नहीं आ रहा। उन्हीं दिनों आजादी की तहरीक जोरों पर थी। बहुत सारे मुसलमान पहलवान बढ़ चढ़ कर इस तहरीक में अपना किरदार अदा कर रहे थे। दिल्ली गेट के नत्था चंगड़ ने अपने आप को तहरीक के लिए वक्फ कर दिया। हिंदू मुस्लिम फिसादात की पादाश में आपको काला पानी की सजा हुई। सजा काटने के बाद जब वापस आए तो कमजोर हो चुके थे। पीर हैदर शाह वली के दरबार के करीब कूचा मोहम्मदी में एक छोटे से घर में सारी जिंदगी गुजारी। 14 अगस्त 1947 को जब यूनाइटेड इंडिया की इक्तिसादी और सियासी तकसीम हुई
तो गामा रुस्तम जमा और उनके खानदान ने पाकिस्तान में रहने को तरजीह दी और पाकिस्तान का अलम बुलंद कर दिया। पाकिस्तान बनने के बाद गामा रुस्तम जमा और इमाम बख्श रुस्तम हिंद व्यायामशाला मोहनी रोड पर आकर आबाद हो गए। और तकिया माईवाला में अपना अखाड़ा कायम किया। इमाम बख्श के सारे बेटे इसी जगह जोर किया करते थे। अपने मजहब और मिट्टी से प्यार करने वाला ये खानदान अहले लाहौर के लिए फख्र का बाइस बना। यही वजह है कि जिंदा दिलाने लाहौर उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ग्यारह अप्रैल 1949 को भोलू पहलवान और यूनुस पहलवान के माबैन रुस्तम पाकिस्तान के लिए पहला दंगल कराची के पोलो ग्राउंड में हुआ। ये दंगल किसके साथ हुआ? यूनुस पहलवान साहब। ये कहाँ के थे यूनुस पहलवान? ये सदीक पहलवान के बेटे थे। तो खलीफा जी, ये यूनुस पहलवान वाला जो दंगल था, ये दंगल भी आपने देखा? यूनुस पहलवान भी तैयारी में था? वो भी बहुत तैयारी में था, ये भी बहुत तैयारी में था। ये कारीगर आदमी था, वो कारीगर नहीं था। तो कितनी खलकत थी वो मुकाबला देखने की? बहुत ही खलकत, बहुत थी, बहुत खलकत। मुकाबला भोलू पहलवान ने जीतकर पाकिस्तान का पहला रुस्तम होने का एजाज भी हासिल कर लिया। यूं इस फन के तीनों बड़े एजाजात रुस्तम जमा, रुस्तम हिंद और रुस्तम पाकिस्तान इस खानदान को नसीब हुए। अब पंजाब फन पहलवानी का गढ़ बन चुका था। यहां अक्सर मेलों और बुजुर्गान दीन के उर्स के मौकों पर दंगलों का इनेकाद होता था। इमाम बख्श के बेटों में अच्छा पहलवान, आजम पहलवान, अक्की पहलवान, गोगा पहलवान, भोलू पहलवान ने बुजुर्गों की जलाई हुई मशल को उम्र भर उठाए रखा। मेरे भाई जिन्हें भी गए ना, जे कला आजम गया थे आजम ने सारे ढा दिता, ਜਿਹੜਾ हिंद केसरी सी ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਗੋਗਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੋਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਕਰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਅਕਰਮ ਨੇ ਸਾਰ ਤੇ ਜੇ ਹਸੂ ਗਿਆ ਤੇ ਹਸੂ ਨੇ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਲਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਇਆ ਸ਼ਬੂ नगर करना। पाकिस्तान की इब्तदाई 3 दहाइयों में शाहनवाज नानी वाले का बेटा मुश्ताक नानी वाला, गूंगा पहलवान का बेटा सदीक पहलवान, भोला गाड़ी रुस्तम पंजाब, जिया पहलवान, काला पहलवान शेर पंजाब, राजू रॉकेट, हाजी अफजल पहलवान, वस्सू बलोच, गोगा गुजरावालिया पहलवान और अब्बासा मुल्तानी पहलवान इस अजीम फन को बचाने के लिए उसे सीने से लगाए हुए थे। ओ मेरा सोना देश किसाना दा, शाहजोरा दा, पलवाना दा, मेरा सोना देश किसाना दा, शाहजोरा दा, पलवाना दा, जग सारा लो आमन दा जे। गोगा और पप्पू के दरमियान पाकिस्तानी तर्ज की कुश्ती को शुरू हुए चंद सेकंड हुए हैं। ये पप्पू ने धाक लगाकर उन्हें गिराया, अलसद गोगा ने इनको गिरा दिया और ये कुश्ती हो गई। और गोगा ने बहुत उम्दगी के साथ धाक लगाते हुए पप्पू पहलवान को, जिनका ताल्लुक गुजरावाला से है, और उन्होंने कुश्ती जीत भी है। मगर यह सिलसिला कुछ ज्यादा देर न चल सका। अगली नस्ल इस फन से दूर होने लगी और अखाड़े वीरान हो गए। कदरी के इस दौर में पहले गामा रुस्तम जमा ज़ेर जमीन जा सोया, फिर उसके पीछे उसका भाई रुस्तम हिंद इमाम बख्श रवाना हुआ। सब कहां कुछ लाला गुल में नुमायां हो गई, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई। स्टार्स नेवर डाई, दे फेड आउट। करीब था कि इस खानदान में सदियों से रोशन पहलवानी का यह चिराग हमेशा के लिए बुझ जाता। अचानक पहलवानी की इस रोशन मशल को झारा पहलवान ने आगे बढ़कर थाम लिया। 17 जून 1979 को लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में झारा पहलवान ने अनोखी से मुकाबला करके उसका फुलका उड़ा दिया। दोनों पहलवान रिंग के वस्त में, बाजू पकड़ा हुआ है अनोखी ने, एक हाथ उनका इस वक्त जुबैर का हाथ उनकी गर्दन पर तेजी से दस्ती लगाने की कोशिश की थी, लेकिन ये जस्ट और कमर को काबू करने की कोशिश की, लेकिन तेजी से बचे। टक्कर मारी उन्होंने, दूसरी टक्कर, और जवाब में अनोखी ने भी टक्कर मारने की कोशिश की। अभी तक इस
फ्री स्टाइल कुश्ती में फ्लाइंग किक दोनों पहलवानों में से किसी पहलवान ने नहीं लगाई है। और ये बस किक लगाकर उन्होंने गिराया अनोखी को, लेकिन अनोखी बहुत फुर्ती से खड़े हुए और फिर एक दफा और एक गिराया, अनोखी नीचे गिरे, जुबैर पहलवान उनके ऊपर आए, लेकिन उनके दोनों पैर जो है उन्होंने पकड़े हुए हैं और लेग लॉक लगाया हुआ है, लेकिन बहुत ही इत्मीनान से अनोखी नीचे है और वो सोच रहे हैं कि जुबैर के इस दांव से किस तरह अपने आप को बचाया जाए। रेफरी जुबैर को बता रहे हैं कि किस तरह ये दांव लगाया जाए। ये अनोखी की टांग जुबैर के हाथ और वो मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमाशाई ने जोरदार तालियां बजाई। अनोखी नीचे हैं इस वक्त, उन्होंने पूरी ताकत से जुबैर ने अपने बाजू छुड़ाए और अनोखी के बाजुओं को अपने कब्जे में किया। अनोखी और जुबैर का ये मुकाबला, अनोखी ने अपने दोनों टांगों से जुबैर को रोके रखा हुआ है, लेकिन फिर दोबारा अनोखी ने कामयाब हुए और इस वक्त जुबैर ने बहुत तेजी से, और ये 5वां और आखिरी राउंड भी खत्म हो गया है। और अनोखी ने छठे राउंड में रेफरी के बजाय खुद झारा का हाथ बुलंद कर दिया। मगर गैरते कौमी से आरी प्रोमोटर जो सट्टेबाजों ने झारा की फतह को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की, जिससे बददिल होकर खानदान रुस्तम जमा का ये आखिरी चिराग रोशनी बांटने के बजाय खुद तारीक राहों पर चल पड़ा। देखो बात ये है, जिस घर के अंदर 200 साल से 2.5 सदियों से ये काम चला आ रहा हो और उसके ऊपर पूरी बर्तरी हासिल हो और अल्लाह ताला ने उस फन के अबूर रखने वालों को बेइंतहा अरूज पे पहुंचाया हो और पूरी दुनिया में उनका नाम हो, लोहा मनवाया हो, और फिर आपको ये नजर आए कि उस फन का और उस घर से कोई ताल्लुक ही ना रहा हो, बिल्कुल खत्म हो जाए, तो दुख तो होगा। हमें भी दुख हुआ, बहुत दुख हुआ।